ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے 3 اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی خبر سابق صدر مورسی کے انتقال پر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک منظم قتل ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر چھان بین ہونی چاہیے، اور اب یہ خبریں پورے عالم اسلام میں بہت ہی ہنگامہ خیز ہوتی جا رہی ہیں اور مرسی کی انتقال کو باقاعدہ قتل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پر میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا، اور ساتھ ہی یوگی راج یعنی ہندوستان کی بات کریں تو بیمار بچوں کے انتقال پر یعنی ان کی موت پر باقاعدہ وہ تعداد اضافہ ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تازہ ایک بیمار معصوم کو لے کر اسپتال میں بھٹکتی رہی دادی کی خبر نے تمام لوگوں کا دل جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر یہ ہے کہ مہاراشٹر کے اکولا کی خصوصی عدالت نے لفظ جہاد کا استعمال کرنے پر کسی کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا ہے کہتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا ہے۔ میں ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہرکیف ناظرین، اخوان المسلمین نے محمد مرسی کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے عام لوگوں سے محمد مرسی کے جنازے میں شریک ہونے کی اپیل کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن اور محمد مرسی کا خاندان طویل عرصے سے یہ کہتا آیا ہے کہ مرسی کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض کا علاج کروانے کے لیے مناسب طبی سہولیات مہیا نہیں کی گئی اور انہیں مسلسل قید تنہائی میں رکھا گیا۔ عدالت میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بی بی سی لکھتا ہے کہ محمد مرسی پیر کو قاہرہ کی ایک عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے۔ وہ قاہرہ میں فلسطینی جماعت حماس کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے جاسوسی کے ایک مقدمے کی کارروائی کے دوران عدالت سے خطاب کرنے کے فوراً بعد گر گئے۔ حکام کے مطابق محمد مرسی نے عدالت میں ایک ساؤنڈ پروف پنجرے سے 5 منٹ تک بات کی ہے۔ مصر کے سرکاری پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ان کی موت کا اعلان مقامی وقت کے مطابق 4:50 پر کیا گیا۔ محمد مرسی کے خاندان نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ حکام نے بارہا انہیں ان تک رسائی دینے سے انکار کیا تھا اور وہ ان کی صحت کے حوالے سے بہت کم جانتے تھے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کہا ہے کہ محمد مرسی کو قید کے دوران صرف 3 بار اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی گئی، جبکہ انہیں ان کے وکیل اور ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا گیا۔ ادارے نے محمد مرسی کی موت کی غیر جانبدار تحقیق کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد مرسی کے بیٹے عبداللہ نے خبر رساں ادارے ریٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے والد کی لاش کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور حکام مرسی کو ان کے آبائی علاقے شرقیہ صوبے میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اخوان مسلمین کے سیاسی بازو دی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی نے محمد مرسی کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے لوگوں سے محمد مرسی کے جنازے میں شریک ہونے اور دنیا میں موجود مصر کے سفارتخانوں کے باہر مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ محمد مرسی کو ان کی گرفتاری کے دوران 5 سال سے زیادہ عرصہ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ انہیں ادویات مہیا نہیں کی گئی اور انہیں بری خوراک فراہم کی گئی۔ انہیں ڈاکٹروں وکلاء سے ملنے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں ان کے خاندان سے بات چیت بھی نہیں کرنے دی گئی۔ انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے محمد مرسی کی موت کا الزام مصر کے غاصبوں پر عائد کیا ہے، جبکہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈپٹی ڈائریکٹر برائے مشرق وسطی اور شمالی امریکہ کا کہنا ہے کہ مرسی کو 6 سال تک قید تنہائی میں رکھا گیا، جس نے ان کی دماغ اور جسمانی حالت پر قابل ذکر اثر ڈالا۔ انہیں مؤثر اور بھرپور طریقے سے باہر کی دنیا سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مشرق وسطی کے ڈائریکٹر سارا وٹسن نے محمد مرسی کی موت کو خوفناک لیکن مکمل طور پر قابل پیشگوئی قرار دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ترکی بہت زیادہ اس معاملے کو آگے بڑھا کر کے پورے عالم اسلام میں اس سلسلے میں جو ہے بات اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حال ہی میں رجب طیب اردوغان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ سابق صدر کی موت کے مجرم مصری حکومت کو عالمی عدالت میں لے جائیں گے۔ استنبول میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصر کے سابق صدر محمد مرسی کمرے عدالت میں 20 منٹ تک مدد کے لیے ہاتھ ہلاتے رہے، لیکن حکام نے توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ محمد مرسی مرے نہیں ہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے اسلامی تعاون کونسل OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محمد مرسی کے قتل پر سخت اقدام اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بحیثیت ترک اس مسئلے کو زندہ رکھیں گے اور محمد مرسی کے قتل کے جرم میں مصر کی حکومت کو عالمی عدالت میں لے جائیں گے
तुर्की के सदर ने मोहम्मद मुर्सी को शहीद का लक़ब दिया और कहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद मुर्सी की मौत कुदरती वजूहात के सबब नहीं थी। रजब तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि वो मज़कूरा मामला रवां माह के अवाखिर में मुनक़िदा होने वाले G20 समिट में उठाएंगे। वाज़ेह है कि मिस्र के साबिक़ सदर मोहम्मद मुर्सी 17 जून को कमरे अदालत में इंतकाल कर गए थे। अदालती ज़राए का कहना था कि मोहम्मद मुर्सी अदालत में मौजूद पिंजरे नुमा सेल में बंद थे, जहां उन्होंने कुछ देर जज से गुफ्तगू की। साबिक़ सदर ने जज से तकरीबन 20 मिनट तक बात की। उसके बाद वो बेहोश हो गए, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गए थे। बहरकैफ नाज़रीन, मोहम्मद मुर्सी की मौत ने इस वक्त एक जमाल खाशिकी की मौत के बाद जो हालात पैदा हुए थे तुर्की के इसमें, और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहम्मद सलमान को इसका कसूरवार भी करार दिया है और उम्मीद की जा रही है कि बाकायदा तफ्तीश की जाएगी मोहम्मद शहजादा सलमान की। इसी तरह अब ये मामला मोहम्मद मुर्सी की मौत का मामला भी इसी अंदाज में आलम इस्लाम में उठाया जा रहा है और इस पर जितने भी तबसरे हो सकते हैं वो तबसरे किए जा रहे हैं और मोहम्मद मुर्सी को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि जिस पिंजरे में वो खड़े थे, जब से वो हाथ हिला रहे थे, कोई किसी ने भी उसकी जानिब तवज्जो नहीं की थी और अगर अचानक उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती तो शायद इस सिलसिले में उनको बचाया जा सकता है, इस तरह का कहना है। जबकि दूसरी जानिब और भी कई तरह के जो है पेश तबसरे आ रहे हैं, बल्कि तनकीद की जा रही है कि उनको सही तौर पर शायद दवाइयाँ नहीं दी गई अदालत में आने से पहले या जानबूझकर नहीं की गई। इस तरह की बहुत सारी बातें उठ कर के आ रही हैं जो सही जांच होने पर भी सामने आ सकती हैं। बहरकैफ नाजरीन, आज की हमारी दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के खस्ता निज़ाम की। इस तरह के निज़ाम की खबरें तो अक्सर आती ही रहती हैं और सेहत खिदमात का तो बीजेपी हुकूमत में इंतहाई बुरा हाल है। इस बदहाली की नई तस्वीर सामने आई है जो योगी हुकूमत की बदनामी का सबब बन रही है। रियासत में बरेली के सरकारी अस्पताल में 4 दिन की मासूम बच्ची ने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया और इस खबर से इलाके के लोगों में गम गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। मीडिया ज़राए के मुताबिक नवजायदा बच्ची को लेकर उसकी दादी कस्मा देवी बरेली के अस्पताल पहुंची थी। बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बच्ची को लेकर उसकी दादी अस्पताल के मेंस विंग में गई, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने वीमेंस विंग में जाने के लिए कहा। जब वो वुमेन्स विंग में पहुंची तो डॉक्टर ने बेड की कमी का हवाला देकर उसे दोबारा मेंस विंग में भेज दिया। अफसोसनाक यह है कि वहां पहुंचकर बीमार बच्ची की दादी ने पूरी रुदा सुनाई, उसके बावजूद उसे इलाज के लिए दाखिल नहीं किया गया। बच्ची की दादी ने बताया कि वो इसी तरह 3 घंटे तक अस्पताल में इधर से उधर भटकती रही और आखिरकार बच्ची ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में बच्ची को एक विंग से दूसरे विंग में भेजने की हिदायत बच्ची की मेडिकल पर्ची में दर्ज है, जिसकी वजह से अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। मीडिया ज़राए के मुताबिक बच्ची की मौत के बाद दोनों विंग के डॉक्टरों के दरमियान तलख बहस भी हुई। मामला बढ़ता हुआ देखकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुदाखलत करते हुए डॉक्टर्स को सजा दिए जाने का फैसला लिया है। बुध की रात ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर बरेली अस्पताल के मेंस विंग के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है और वुमेन्स विंग की सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुहकमाती कार्रवाई का हुक्म भी सादिर किया गया है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं यूपी में इस वक्त। बिहार का तो हाल आपको पता ही है, इस वक्त तक 100 से ज़ायद बच्चे चमकी बुखार की वजह से इंतकाल कर गए हैं और वहाँ का हाल ये है कि एक बेड पर 3 बच्चों को सुलाया जा रहा है और ये खबरें इस वक्त पूरे नेशनल मीडिया में फैली हुई हैं। इस बीच में कुछ खबरों को जो लोग खबरें नहीं समझते बल्कि अपने TRP का ज़रिया समझते, वो लोग वहाँ पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय डॉक्टर्स और नर्सों से ही सवालात करते घूम रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की तीसरी खबर है महाराष्ट्र के अकोला के खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 3 नौजवानों को बरी करते हुए कहा है कि सिर्फ जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल करने भर से किसी को दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम मलिक 29, शुएब खान 29 और अब्दुल मालिक 24 को 25 सितंबर 2015 को बकरीद के मौके पर पोसत की मस्जिद के बाहर रियासत में बीफ बैंड को लेकर पुलिस एहलकारों पर हमला करने पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ATS का दावा था कि वो मुस्लिम नौजवानों को मुतासिर करके दहशतगर्द तंजीम में शामिल करने की साजिश का हिस्सा था। तीनों को इल्ज़ामात से बरी करते हुए खुसूसी अदालत के जज ES जाधव ने अपने 21 मई के हुक्म में कहा, डिक्शनरी के मुताबिक जिहाद का लुग़वी मानी जद्दोजहद होता है। जिहाद एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका मानी कोशिश या जद्दोजहद करना होता है। BBC के मुताबिक जिहाद का तीसरा माना एक अच्छा समाज बनाने के लिए जद्दोजहद करना होता है। जिहाद से जुड़े लफ्ज़ मुहिम, इंतज़ामिया, तहरीक, कोशिश और जिहाद है, इसलिए मुल्जिम के ज़रिए सिर्फ जिहाद लफ्ज़ के इस्तेमाल की बुनियाद पर उसको दहशतगर्द कहना मुनासिब नहीं होगा। अब्दुल को जानबूझकर पुलिस एहलकारों को चोट पहुंचाने के लिए 3 साल की सज़ा मिली थी, क्योंकि वो 25 सितंबर 2015 से जेल में था और 3 साल जेल में गुजार चुका था। इसको भी रिहा कर दिया गया है। अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि मुल्जिम नंबर 1 यानी अब्दुल ने
हुकूमत और हिंदू तंजीमों के जरिए गौकशी पर पाबंदी लगाने के खिलाफ अपने गुस्से को तशद्दुद के तौर पर जाहिर किया। इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे ये नतीजा निकालना कि महज इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से उसको दहशतगर्द करार देना चाहिए, बेहद जोखम भरा है। इस्तिगासा का कहना था कि अब्दुल मस्जिद में पहुंचा, चाकू निकाला और काम पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर हमला किया। हमले से पहले उसने कहा कि बिग बिन की वजह से वो पुलिस वालों को मार देगा। हालांकि अब्दुल ने इससे इनकार किया था। अदालत ने इस बारे में जख्मी पुलिस एहलकारों और बाकी पुलिस एहलकारों के बयान पर एतमाद किया। अदालत का कहना था कि सिर्फ इसलिए वो पुलिस एहलकार हैं, उनके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। अब्दुल के वकीलों का दावा था कि पुलिस एहलकारों के बयान में गड़बड़ी थी। हालांकि अदालत ने माना कि मौके वारदात पर मुलजिम की मौजूदगी के सबूत हैं, लेकिन उसने ये मानने से मना कर दिया। बहरकैफ नाज़रीन, तीनों मुलजिमान को इस वक्त रिहाई मिली है और अदालत का ये बयान वाकई में काबिल तारीफ़ है, जिसमें उन्होंने जिहाद लफ्ज़ को लेकर के ये बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया है और ये दूसरे लोगों को भी और जिहाद के नाम पर जो दूसरों को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं या फिर अलग किस्म से जो है लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं इस लफ्ज़ को लेकर के, उनको ये फ़ैसला ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। भाई नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कल किसी और उन्वानात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।